Okay, so will not wait for the others. Okay. So I think in last lecture we already started this fifth unit, which is double integral, and next unit is also similar to this, है ना? Which is triple integral. Okay. So I think in last lecture I have introduced this double integral. Okay. How we denote double integral and how you actually find value of that double integral. So our approach is what? At the end we will solve that double integral using single integral only. सिंगल इंटीग्रल का ही यूज़ करके आपको वो डबल इंटीग्रल सॉल्व करना है, ठीक है. बट देर आर सम रूल्स under which only or by that order only we have to solve that given double integral. So let me quickly revise again and then we'll move to the next part. Okay, so can anyone tell me what are the rules or how you decide the order of your given integral? Yes, how you decide the order of your given integral? If this is my double integral dx dy, okay. Sure. Yes. Sir, screen visible नहीं है what is it? Screen. So I hope now the screen is visible to all. So tell me how we actually, just 1 minute. So now tell me how we actually decide order of our given double integral. कैसे करते हो आप वो? Can anyone tell me this? First, yes, how you decide कि पहले आपको किससे इंटीग्रेट करना है with respect to what and then what? How you decide this order? Yes. सर लिमिट ते लिमिट कोणत्या ह्याच्यात म्हणजे हां. So in general the limits of outer integral are always Constant. constant. outer integral का कोई रोल नहीं है. In general the limits of outer integral are always constant. Okay, so we have to focus on only this inner integral. So if this inner integral are a function of x, then your order is dydx dy dx. रिवर्स होता है, x का फंक्शन है तो पहले डिवाइड से करो बाद में x से करो, एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जैक्टली इसका अपोजिट होगा. इफ योर इनर इंटीग्रल आर फंक्शन ऑफ y, correct, then you have to integrate first with respect to x and then with respect to y. Okay, so at then result आपके पास, हाँ, result आपके पास क्या है? If the limits of inner integral are function of x, then your order is dy dx. If the limits of inner integral are function of y, then your order is dx dy, correct. And the last result is what? If the limits of inner integral are constant, है ना? If the limits of inner integral are constant, if both limits are constant, then you can integrate first with respect to x also and with respect to y also. Again it is totally your choice. तो ये भी आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो? ओके, लेटर ऑन आई विल टेल यू दैट आल्सो. कि यहाँ पे आपको बस ये देखना है कि एफ ऑफ एक्स वाई का विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव इजी होगा या विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव इजी होगा, जिससे आप पहले इंटीग्रेट कर रहे हो ना. ओके, दोनों में से जहाँ पे वो इजी होगा उसी अप्रोच से आपको वो एग्जांपल सॉल्व करना है. ओके, बिकॉज देर आर सम केसेस वेयर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वाई. यू कैन गो बाय दिस ऑर्डर, बट ऐसा एक फंक्शन आपको वहाँ पे आ सकता है जिसको y से इंटीग्रेट करना आपको डिफिकल्ट जा सकता है. सो इन दैट केस इट्स बेटर टू गो विद dx dy ऑर्डर. तो आप वहाँ पे dx से इंटीग्रेट करो फिर y से इंटीग्रेट करो, क्योंकि दोनों केसेस से आपको सेम आंसर मिलता है. तो ये भी आपको देखना होगा कि दोनों में से कौन सा अप्रोच आपके लिए वहाँ पे सिंपल जा रहा है. सो दैट क्राइटेरिया इज ऑल्सो देयर while selecting this order. Okay, divide by dx, divide dx or dx dy. Okay, and I think we also consider some examples on this. ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिए थे. एंड एक जो लास्ट रिजल्ट मैंने आपको दिया था, ये बोथ लिमिट्स आर कांस्टेंट एंड योर फंक्शन इज इन वेरिएबल फॉर्म, सेपरेबल फॉर्म, दैट वी नीड इन नेक्स्ट टॉपिक. ओके, पोलर फॉर्म या जो वॉल्यूम का टॉपिक है, उन सारे टॉपिक में हमें ये रिजल्ट चाहिए. ओके, इसी रिजल्ट से वो प्रॉब्लम आपका ईजी हो जाएगा.
सो इफ योर फंक्शन इज इन सेपरेबल फॉर्म मीन्स व्हाट, x का पार्ट अलग है, y का पार्ट अलग है, and the limits are constant, then you can directly separate that integral in terms of product. मतलब x का इंटीग्रल आप अलग कर सकते हो और y का इंटीग्रल भी आप अलग कर सकते हो. Okay, this is possible only in this case. If your limits are variable, then this result is not true. Okay, or this is not possible. ये ऐसा अगर आप कुछ करते हो वहाँ पे, that is totally wrong. Correct? Okay. So now let us okay, so this is your type 1. Okay, what is meant by type 1? Type 1 means double integral with limits. अभी तक के सारे केसेस में हमने विद लिमिट का पार्ट वहाँ पे सॉल्व किया था. ओके, जस्ट 1 मिनट. Just 1 minute. Okay, and now नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, द डबल इंटीग्रल विदाउट लिमिट्स. ओके, तो अभी यहाँ पे क्या होगा, वी हैव गिवन अ डबल इंटीग्रल, आपके पास एक फंक्शन भी होगा x² + y² dx dy, बट इन प्रीवियस टाइप ओके वी हैव गिवन दिस लिमिट्स, और लिमिट्स से आप डायरेक्टली ऑर्डर डिसाइड करके आप उसको सॉल्व करते थे. ठीक है, बट इन दिस सेकंड टाइप इंस्टेड ऑफ दिस लिमिट्स वी हैव गिवन अ रीजन. एक कोई तो रीजन आपको गिवन होगा. Suppose this is your region R. So instead of these limits, now we have given a region. From region, we have to identify limits and also the order. ठीक है, so from this region, we have to identify the limits and also the order. ठीक है, तो ये सब कुछ कैसे होगा, यही सबसे मतलब आप कंसिडर करो डबल इंटीग्रल का यही सबसे मेजर पार्ट है. ओके, और इस पे ही आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस आ सकते हैं. ये मतलब ये अगर आपको नहीं समझ में आता तो आगे थोड़े बहुत डिफिकल्टी आपको आएगी. दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक एज फार एज डबल इंटीग्रल इज कंसर्न. यानी यही सेम लॉजिक, क्योंकि ट्रिपल इंटीग्रल जो है, जैसे अभी आपने डबल इंटीग्रल को सिंगल इंटीग्रल में कन्वर्ट करके सॉल्व किया था, वैसे ट्रिपल इंटीग्रल को ओके कुछ केसेस में मैं डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट करके सॉल्व करने वाला हूँ, या कुछ केसेस में मैं सिंगल इंटीग्रल में, तीनों इंटीग्रल सिंगल में कन्वर्ट करके सॉल्व करने वाला हूँ. इज दिस क्लियर? क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है सबको? So when we go for a next unit, okay, when we go for a next unit, अगर आपको डबल इंटीग्रल का पार्ट नहीं समझ में आ रहा है तो वो टोटल टॉपिक आपका मिस हो जाएगा. You will not understand any single part from that last topic, okay, triple integral. So for triple integral, okay, we need this knowledge, we need the knowledge of double integral also, क्योंकि वहाँ पे हम दोनों अप्रोच से जाने वाले. इन सम एग्जाम्पल वी कन्वर्ट दैट गिवन ट्रिपल इंटीग्रल इनटू सिंगल इंटीग्रल, और इन सम एग्जाम्पल वी कन्वर्ट दैट गिवन ट्रिपल इंटीग्रल इनटू डबल इंटीग्रल. तो जैसे डबल में आ जाता है वो विदाउट लिमिट में ही रहेगा, इसी सेक्शन में वो कन्वर्ट होगा. आपको इसके आगे लिमिट्स कैलकुलेट करके फिर उसको सॉल्व करना है. सो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट इफ यू कंसिडर दिस बोथ यूनिट 5 एंड यूनिट 6. तो नहीं समझ में आ रहा था, आप मुझे फिर से पूछो, मैं इस पे ज़्यादा क्वेश्चन लेने भी वाला हूँ. बट अगर ये पार्ट क्लियर होता है तो आगे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए सिंपल जाएंगे. अदरवाइज क्योंकि फिर आपको डिफिकल्ट होगा, क्योंकि क्या हो रहा है इसमें, रीजन गिवन अगर आपको रहता है तो आपके पास लिमिट्स ही नहीं है. विदाउट लिमिट्स आप वहाँ पे एक स्टेप भी नहीं लिख पाओगे या कैलकुलेशन ही नहीं कर पाओगे. दैट इज द प्रॉब्लम विद दिस अप्रोच. ओके, तो इसलिए समझ में आता है तो ही आप इसमें आगे कैलकुलेशन कर सकते हो. ओके, सो नाउ वी हैव गिवन अ डबल इंटीग्रल विदाउट लिमिट्स. ओके, तो ऐसे कुछ आप इमेजिन करो, ऐसा कुछ तो आपके पास एक इंटीग्रल है, सम फंक्शन इज देयर, बट इंस्टेड ऑफ दिस लिमिट्स नाउ वी हैव गिवन अ रीजन. ठीक है, so in this case, so the double integral without limits, in this case अभी कौन से ऑर्डर से आपको सॉल्व करना है, ओके, दैट डिसीजन, वो डिसीजन आपको ही लेना है. करेक्ट? तो यहाँ पे पहले आपको उस क्वेश्चन को dy बाई dx ऑर्डर से सॉल्व करना है या dx बाई dy से सॉल्व करना है, ये डिसीजन आपको पहले क्लियर फिक्स करना होगा. अभी वो भी मैं प्रॉब्लम सॉल्व करके देता हूँ. इन एवरी एग्जाम्पल फर्स्ट यू ट्राई दिस ऑर्डर. ओके, क्योंकि एग्जाम्पल देख के आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा कि मुझे डिवाइड dx से जाना है या dx dy से जाना है. पहला स्टेटमेंट समझ में आ रहा है सबको? ओके, फॉर एनी गिवन एग्जाम्पल आइदर वी कैन गो बाय द ऑर्डर डिवाइड dx और dx dy. तो दोनों में से किसी ना किसी एक ऑर्डर से आपको प्रॉब्लम को स्टार्ट करना ही होगा. ओके, बट उसके लिए भी मैंने सोल्यूशन दिया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर देयर ऑन दिस डिवाइड dx ऑर्डर. सो ऑलवेज फर्स्ट ट्राई दिस ऑर्डर. इसमें कुछ केसेस आने वाले हैं, इसमें कुछ रूल्स आने वाले, यूजिंग दोज रूल्स ओनली विल गेट द लिमिट्स फॉर दिस ऑर्डर. फर्स्ट स्टेटमेंट सबको समझ में आ रहा है?
ऑर्डर पहले आपको डिसाइड करने की मुझे ये प्रॉब्लम डिवाइड डीएक्स से सॉल्व करना है या डीएक्स डिवाइड से सॉल्व करना है, ये पहले आपको डिसीजन लेना होगा, उसके आगे ही आप फिर वो कैलकुलेशन कर सकते हो। इज दिस क्लियर? यस सर। यस हाँ, सो और उसके लिए भी मैंने आपको बोला कि ज़्यादातर केसेस में डिवाइड डीएक्स से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, सो इट्स बेटर दैट यू ऑलवेज स्टार्ट विद दिस ऑर्डर। आप पहले इस ऑर्डर से स्टार्ट करो। कुछ ऐसे एग्जांपल्स रहेंगे जहाँ पे डिवाइड डीएक्स से वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा ही नहीं, मतलब वो इंटीग्रेशन डिफिकल्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ इसमें वो कन्वर्ट हो जाएगा कि जिसके आगे आपको सॉल्व करना पॉसिबल ही नहीं होगा। सो इन दैट केस वी हैव टू चेंज अवर ऑर्डर, फिर से आपको उस क्वेश्चन को डीएक्स डिवाइड ऑर्डर से सॉल्व करना होगा। बट ऐसे केसेस में क्या हो रहा है, जो इनिशियली आपने जो अटेम्प्ट किया था फॉर ए डिवाइड बाय डीएक्स ऑर्डर, ओके, सो उतना टाइम आपका उसमें वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक ड्रॉबैक है अभी, क्योंकि इसके लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक रिजल्ट नहीं है। दोनों अप्रोचेस आपके लिए ओपन है, आप दोनों मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, दोनों मेथड से आपको सेम आंसर मिलने वाला है, ठीक है। तो कहीं पे ना किसी लॉजिक से आपको एक डिसीजन लेके आगे जाना होगा। सो इसलिए मैंने आपको क्लियर किया था कि इट्स ऑलवेज बेटर टू गो विद डिवाइड डीएक्स ऑर्डर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलो आपने ये तो फिक्स किया कि मुझे इस क्वेश्चन को डिवाइड डीएक्स ऑर्डर से सॉल्व करना है। नाउ हाउ वी एक्चुअली गेट दोज लिमिट्स, तो इस टॉपिक में मैं आपको यही एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आपको वो लिमिट्स कैसे मिलने वाले हैं, ठीक है। सो स्टेप 1 इज व्हाट, ड्रॉ द गिवन रीजन। तो क्वेश्चन में आपको रीजन गिवन होगा कि क्या क्या रीजन आपको गिवन होगा, कैसे मैं आपको डायरेक्टली एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको ग्राफ का नॉलेज चाहिए कि y इक्वल टू एक्स लाइन क्या है, x प्लस वाई प्लस 2 कैसे ड्रॉ करना है, थोड़ा बहुत आपको ग्राफ का नॉलेज चाहिए, तब जाके आपको रीजन परफेक्ट आप ड्रॉ कर सकते हो। ओके, सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी हैव टू फर्स्ट ड्रॉ अवर रीजन। तो अभी के लिए मैं एक सिंपल रीजन कंसिडर करता हूँ, जस्ट टू एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट। सपोज मेरा ये रीजन आ रहा है, सर फंक्शन दिलेलं असेल ना आपल्याला? फंक्शन दिलेला असेल, फंक्शन असेल, येस फंक्शन आपके पास होगा, आपके पास बस रीजन नहीं रहेगा वहाँ पे, ठीक है। सो लेट मी जस्ट ड्रॉ गिवन रीजन, मैं रैंडम ले रहा हूँ, लेट अस टेक x इज इक्वल टू a region bounded by this two line, y is equal to b, है ना, एंड इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहा हूँ। ओके, लेट मी हाईलाइट दिस रीजन। ये आपको गिवन होता है, तो ये कैसे ड्रॉ करना है वो सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, डोंट वरी। हाँ, इसलिए आपको मैंने वो ऐप भी बोला था, यू कैन डाउनलोड दैट ऐप ऑल्सो। ओके, सो नाउ एज्यूम दैट दिस इज अवर रीजन आर, लेट मी टेक अनदर कलर। एज्यूम करो ये आपका गिवन रीजन आर है, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, तो उसमें कुछ ज़्यादा आपको थॉट देने की जरूरत नहीं। ओके, नहीं ये नहीं लेता हूँ मैं, ये ज़्यादा सिंपल हो रहा है। लेट मी इंस्टेड ऑफ दिस कांस्टेंट ना, लेट मी टेक अ फंक्शन, क्योंकि वो फंक्शन ही रहता है। लेट मी मेक इट और कॉम्प्लिकेटेड। ये दोनों लिमिट्स कांस्टेंट में जाने वाला है, सो आई डोंट वांट दैट। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ना एक फंक्शन ले लेता हूँ, ठीक है। ये मेरा फंक्शन है, दिस इज माई y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन, ठीक है। नाउ इफ आई हाईलाइट दिस रीजन अगेन, तो ये मेरा रीजन होगा, है ना, ठीक है। हाँ हाँ, ओके, नाउ आई कैन स्टार्ट। चलो, ओके, इज दिस क्लियर? ये कैसे ड्रॉ करना है मैं डायरेक्टली आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट स्टेटमेंट मेरा क्या था, ऑर्डर आपको डिसाइड करनी है। सो अगेन दैट डिसीजन you have to take, either you have to go by dy dx order or dx dy order. Later on also you will understand कि कैसे ये डिसाइड करना है कि मुझे dy dx से करना है या dx dy से करना है, उसके लिए एक एक्चुअल रिजल्ट है, बट वो आपको इमीडिएटली अभी नहीं समझ में आएगा। ओके, सो जैसे 2-3 क्वेश्चन हो जाते हैं ना, बाद में आप खुद वो रिजल्ट मुझे बोल सकते हो कि सर इस केस में मुझे डिवाइड dx से जाना होगा, इस केस में मुझे dx dy से जाना होगा। ओके, बट जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी अभी आप सारे क्वेश्चन को डिवाइड dx से सॉल्व करो। चाहो तो एक एग्जांपल मैं आपको ऐसे देता हूँ जिसमें दोनों ऑर्डर से मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ और दोनों आंसर आपके सेम ही आने वाले हैं। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। स्टेप 1 हो गई, ड्रॉ द गिवन रीजन। नेक्स्ट, ड्रॉ, सो व्हेन वी हैव टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम बाय डिवाइड dx ऑर्डर, तो डिवाइड dx से अगर मुझे गिवन इंटीग्रल सॉल्व करना है तो मुझे यहाँ पे नीचे क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू dy, है ना, और मुझे यहाँ पे y के लिमिट्स चाहिए, है ना। देन
आई हैव टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और मुझे यहाँ पे एक्स के लिमिट चाहिए. नाउ दिस टू लिमिट्स आई हैव टू कैलकुलेट फ्रॉम दिस रीजन. ठीक है, तो अभी देखो स्टेप 2 क्या है. नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट. सो हाउ वी एक्चुअली गेट दिस लिमिट्स. Okay, so draw. So for the order divide dx, always draw a vertical strip in a given region. So let me draw this first. Same color. Just 1 minute. Color भी नहीं है. हाँ. So let draw a vertical strip in the given region. ठीक है. हाँ. एंड फाइंड्स लिमिट्स ऑफ y एट द एंड ऑफ दिस स्ट्रिप. तो यहाँ पे मुझे y की वैल्यू चाहिए, और यहाँ पे भी मुझे y की वैल्यू चाहिए. सो लेट मी जस्ट इरेज फ्यू थिंग्स. सो दिस इज माय फंक्शन f. हाँ, नाउ टेल मी लिमिट्स ऑफ y एट द एंड ऑफ दिस स्ट्रिप. मैं स्टेटमेंट रीड करके यहाँ पे चेंजेस कर रहा हूँ. ड्रॉ वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ की. अभी मुझे क्या चाहिए, y की लिमिट चाहिए एट द एंड ऑफ दिस स्ट्रिप. तो बोलो मुझे इस एंड पे, एंड मतलब यहाँ पे लाइन है. हाँ, इस एंड पे मतलब यहाँ पे एक लाइन है. तो इस लाइन पे y की वैल्यू क्या है? 0. अदर स्टूडेंट प्लीज फोकस हियर. और यहाँ पे भी एक लाइन है. ये जो एंड होगा यहाँ पे भी एक लाइन है. कर्व का ही पार्ट है ना एक. हाँ, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू क्या है? f ऑफ x ना, क्योंकि ये फंक्शन गिवन ही है आपको. करेक्ट ना? यस. हाँ, ये समझ में आ रहा है ना. why have to consider f of x here. ये जो लाइन है ये फंक्शन के ऊपर की लाइन है ना. f of x के ऊपर f of x का ही पार्ट है वो. सो y इक्वल टू f of x एट दिस पॉइंट. इज दिस क्लियर नाउ? ये क्लियर है? यस सर. हाँ, अभी आप बोलिए यहाँ पे कांस्टेंट क्यों नहीं आ रहा है? कांस्टेंट क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे सिंगल पॉइंट नहीं है. करेक्ट है? यहाँ पे कांस्टेंट क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे सिंगल पॉइंट है. ये एक स्ट्रिप है. अभी स्ट्रिप की लेंथ आपके ऊपर डिपेंड है. मैं मतलब इतनी बड़ी भी स्ट्रिप ले सकता हूँ. ओके, इसलिए स्ट्रिप में हमेशा जो एंड्स, स्ट्रिप के जो एंड्स आते हैं ना, दैट विल बी अ लाइन. ओके, अगेन इट वैरी फ्रॉम रीजन टू रीजन, बट एक लाइन जैसे ट्रीट करके आपको उसके लिमिट्स कैलकुलेट करने. ओके, एंड यही लिमिट्स आपके आ जाएंगे y के लिमिट्स. सो y इक्वल टू 0 टू f ऑफ x. अभी एक कन्फ्यूजन क्या होगा, लेट मी कंसिडर हियर f1 ऑफ x. ये f ऑफ x और ये अलग अलग है. हाँ, तो ये f1 कर देता हूँ. ओके, एंड नाउ नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट? मूव दिस स्ट्रिप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. अभी आपको एक्चुअली आपको करना है क्या है, इस स्ट्रिप से आपको ये पूरा रीजन कवर करना है. यू हैव टू कवर दिस होल रीजन. सो यू हैव टू मूव दिस स्ट्रिप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ओके, अभी ये भी आप याद रखो, मैं डायरेक्शन यहाँ पे फिक्स कर रहा हूँ. मुझे लेफ्ट से आई हैव टू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? व्हाई आई कैन नॉट गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट? आई कैन गो, बट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? ओके, जस्ट टू अवॉइड दैट माइनस साइन. ओके, यू विल अंडरस्टैंड लेटर ऑन. क्योंकि ये जो डबल इंटीग्रल होता है, ये बेसिकली आपको क्या देने वाला है? ये बेसिकली आपको क्या देने वाला है? वॉल्यूम देने वाला है. वॉल्यूम आपको पता है कि वो निगेटिव नहीं आता ना. आप अगर निगेटिव भी आता तो आप उसको पॉजिटिव ही लिखते हो. तो इसलिए जस्ट टू अवॉइड दैट माइनस साइन आपको लिमिट्स लेफ्ट टू राइट कंसिडर करने, है ना. सो वो माइनस का पार्ट यहाँ पे जनरेट नहीं होगा. ठीक है, सो नाउ कंसिडर, नाउ यू हैव टू मूव द स्ट्रिप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ओके सर. यस सर, दोनों वेरिएबल है ना, मैं वॉल्यूम का एरिया दे देना पाहिजे ना. अभी के लिए ये इस क्वेश्चन को मैं आंसर नहीं कर रहा हूँ. ओके, बट रिमेंबर दिस डबल इंटीग्रल गिव्स यू वॉल्यूम. अभी कैसे? ये f ऑफ एक्स वाई. हाँ, अभी मैं आपको सिंपल मतलब इसका एक्चुअल रीजन मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस टॉपिक में. ठीक है, अभी आप मुझे ये बोलो, ये f ऑफ एक्स इसका ग्राफ कौन सा डायमेंशन में जाएगा? जब आप ये ग्राफ प्लॉट करोगे, ये कौन सा डायमेंशन में जाएगा? हाँ, 3 डायमेंशन में जाएगा ना. जब व्हेन यू वांट टू प्लॉट दिस, आपको z इक्वल टू f ऑफ x लेना होगा ना, तब जाके आप इसको प्लॉट कर सकते हो. तो कितने वेरिएबल आ रहे हैं टोटल? 3 वेरिएबल आ रहे हैं. तो जो भी मिलेगा आपको वहाँ पे, वो 3 डायमेंशन में क्या मिलेगा? वॉल्यूम ही मिलेगा. ठीक है, सो तो इसलिए ये 100% वॉल्यूम ही देता है. बट ये सेम डबल इंटीग्रल यूज करके मैं एरिया भी कैलकुलेट कर सकता हूँ. ठीक है, सो दैट इज इंटरेस्टिंग पार्ट. अभी के लिए इसको आंसर नहीं करते, ये एक्चुअली आपके टॉपिक में है. सो डोंट वरी अबाउट दैट. तो अभी के लिए इतना याद रखो, ग्राफ वो 3 डायमेंशन में जा रहा है तो वो वॉल्यूम ही देगा. ओके, ये कौन से डायमेंशन में जा रहा है? सिंगल इंटीग्रल 2 डायमेंशन में जा रही है, इसलिए आपको क्या मिलता है यहाँ पे? 2 डायमेंशन में एरिया मिलता है. इसका ग्राफ 3 डायमेंशन में जा रहा है, इसलिए आपको क्या मिलेगा? वॉल्यूम मिलेगा. ठीक है, सो
दैट इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, ठीक है। हाँ हाँ, अभी मैं क्या बोल रहा था कि हाँ, सो कंसिडर वर्टिकल स्ट्रिप इन गिवन रीजन, नाउ वी हैव टू मूव द स्ट्रिप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना। सो व्हेन वी लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, मतलब लेफ्ट एंड पे आना है एंड उसके बाद डायरेक्टली राइट एंड पे आना है एंड वहाँ पे आपको x के वैल्यूज कैलकुलेट करने हैं। सो व्हेन वी एट लेफ्ट एंड पे मतलब क्या है, ये कौन सा एक्सिस है, y एक्सिस है लेफ्ट एंड पे। सो इस एक्सिस पे और उस वहाँ पे आपको x की वैल्यू चाहिए। सो व्हेन वी एट लेफ्ट एंड, सो एट लेफ्ट एंड मतलब यहाँ पे होगा इस लाइन पे, और सो ऑन दिस लाइन व्हाट इज वैल्यू ऑफ x, 0। And when we move from left to right, at right end, what is value of x? a। तो आउटर लिमिट आपके क्या आएंगे, 0 to a। और आपको मैंने पहले ही क्लियर किया था, है ना, यहाँ पे आउटर लिमिट्स हमेशा आपके कांस्टेंट ही आते हैं बिकॉज ऑफ दिस रूल। या ये जो स्ट्रिप आप मूव करते हो ना, ये मूव करते हो मतलब ये पॉइंट, मतलब ये एंड हमेशा पॉइंट पे ही होता है, आपको दिखाई देगा आगे भी, यू कैन इजीली विजुअलाइज दिस थिंग। तो ये होते हैं उसके लिमिट्स, इतना सिंपल रिजल्ट है। अब इस सबको याद कैसे रखना है, मतलब ये वर्टिकल स्ट्रिप कैसे याद रखना है, तो मैं आपको एक सिंपल लॉजिक बोलता हूँ। आप हमेशा पहले वेरिएबल पे फोकस करो। आपको यहाँ पे पहले y से इंटीग्रेट करना है, y से इंटीग्रेट करना है मतलब y एक्सिस होता है, ये लॉजिक है, इसका और मैथमेटिक्स का कोई रिलेशन नहीं है। डिवाइड dx में पहले आपको y से इंटीग्रेट करना है, y से इंटीग्रेट करना है मतलब y एक्सिस होता है, y एक्सिस आपको पता है वर्टिकल होता है, इसलिए डिवाइड बाय dx ऑर्डर के लिए आपको हमेशा एक वर्टिकल स्ट्रिप कंसिडर करनी है। ये पूरा स्टेटमेंट बस इस डायग्राम से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद उस वर्टिकल स्ट्रिप के लिए आपको y के लिमिट्स कैलकुलेट करने। वर्टिकल स्ट्रिप मतलब y के लिमिट्स, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मतलब x के लिमिट्स। सो ये सब कुछ y पे ही डिपेंड होता है। सो वर्टिकल स्ट्रिप मतलब यहाँ पे y के लिमिट्स कैलकुलेट करने, वो आ जाते हैं इनर इंटीग्रल के लिमिट्स। स्ट्रिप के जो भी लिमिट्स है वो हमेशा आपके इनर इंटीग्रल के ही लिमिट्स आते हैं। स्ट्रिप के जो भी लिमिट्स है वो आपके हमेशा इनर इंटीग्रल के ही लिमिट्स आते हैं। And now we have to move this strip from left to right, and at left we have to calculate x. Is this clear now? लिमिट्स कैसे कैलकुलेट करने, ये पार्ट आपको अभी ज़्यादा ऑनलाइन में आ सकता है क्योंकि इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना है, ग्राफ प्लॉट करके बस लिमिट्स कैलकुलेट करना है। तो इस पे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं अभी के एग्जाम में, ओके। थ्योरी के केस में इसको पूरा सॉल्व करने का क्वेश्चन आता है, बट आपको सॉल्व करने का भी आएगा और यहाँ तक भी आ सकता है लिमिट्स कैलकुलेट करने का पार्ट, ठीक है। इज दिस क्लियर? Is this clear? Yes, sir. Okay. Now, same logic. Okay. अगर मैं dx dy के लिए अप्लाई करता हूँ, so can anyone tell me कि क्या रिजल्ट हो सकता है dx dy के लिए? x की लिमिट 0 to f1 of y। dx dy के लिए मुझे कौन सी स्ट्रिप कंसिडर करनी है? हॉरिजॉन्टल dx है ना, तो आपको उस केस में हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कंसिडर करनी है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के लिए एंड पे क्या कैलकुलेट करना है? x कैलकुलेट 0 to f1 of y। वर्टिकल स्ट्रिप पे तो y, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप पे तो x। फिर उसके बाद आपको ये स्ट्रिप कैसे मूव करनी है? व्हाट्स द डायरेक्शन? व्हाट्स द डायरेक्शन? बॉटम टू टॉप। वेरी गुड, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ठीक है। ये डायरेक्शन आपको फिक्स करनी है, बॉटम से टॉप पे जाना, तो निगेटिव वैल्यू नहीं आती फिर। एंड एट बॉटम यू हैव टू कैलकुलेट y। तो स्ट्रिप के जो लिमिट्स है वो इनर इंटीग्रल के लिमिट्स आते हैं एंड y के जो लिमिट्स है वो आउटर इंटीग्रल के लिमिट्स आते हैं, ठीक है। तो जो नेक्स्ट पार्ट है मैं बस आपको इस सिंगल डायग्राम से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, देन आई विल टेक सम एग्जांपल्स ऑन दिस, ओके। सो फॉर द ऑर्डर dx dy है ना, वी हैव टू ड्रॉ द रीजन एंड इन दैट रीजन consider a horizontal strip in a given region, correct, and calculate the values of x at the ends, then move the strip from bottom to top, direction याद रखो, and calculate y there. So the given integral over region R f of xy dx dy can be written as, so first of all we have to integrate this with respect to what? इस केस में किससे इंटीग्रेट करना होगा? dx से, करेक्ट, क्योंकि ऑर्डर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है मतलब dx dy के ऑर्डर है। एंड देन राइट द लिमिट्स ऑफ x हियर एंड देन इंटीग्रेट दिस विद रिस्पेक्ट टू y एंड राइट लिमिट्स ऑफ y हियर। इज दिस क्लियर नाउ? लिमिट्स का पार्ट क्लियर हो गया सबको? एनी डाउट इन दिस टू टॉपिक?
क्लियर है? Yes, sir. ओके। और अभी भी अगर कुछ डाउट्स है तो एटलीस्ट इस क्वेश्चन से वो पार्ट आपका सॉल्व हो जाएगा। ओके, यहाँ पे फंक्शन नहीं दिया है क्या? सो आई थिंक सो, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली इवैल्यूएट का पार्ट होगा नहीं, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको रख देता हूँ, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करते। बट इस क्वेश्चन में आपको बस लिमिट्स ही कैलकुलेट करने, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन। अभी यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू रहेगी, फॉर एग्जांपल मैं अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी ले लेता हूँ तो उसके आगे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो इट डिपेंड ऑन यू कि आपको फंक्शन की वैल्यू क्या करनी है। तो मैं सिंपल एक्स स्क्वायर अभी कंसिडर कर रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, उसमें वाई का टर्म है ही नहीं, ठीक है। देखते फिर इसको कैसे सॉल्व करना है। और ये भी ऑनलाइन में ज़्यादातर ऐसे पैटर्न में ही आएगा, वो फंक्शन के जगह पे एफ ऑफ एक्स वाई गिवन होगा, आपको बस लिमिट्स कैलकुलेट करने हैं। ओके, सो इन सोल्यूशन एक्चुअली वी हैव टू इवैल्यूएट दिस गिवन इंटीग्रल ओवर द रीजन। तो उन्होंने आर गिवन, मतलब यहाँ पे ओवर रीजन गिवन बाय दिस, एक्चुअली ये गिवन वर्ड भी करेक्ट नहीं है, ओवर रीजन आर इंस्टेड ऑफ दिस गिवन देयर मस्ट बी बाउंडेड बाय, ओके, ये वर्ड होगा। मैंने डायरेक्टली कॉपी पेस्ट किया उधर पीपीटी से, बट देयर शुड बी अ बाउंडेड वर्ड। सो इवैल्यूएट दिस गिवन इंटीग्रल ओवर द रीजन आर बाउंडेड बाय दिस three lines. Okay, so let us drop this region first. बोलो x equal to 0 and y equal to 0 means what? x equal to 0, ये रीजन है, ये रीजन है, ये पॉइंट नहीं है, ये कर्व्स है सारे। सो x equal to 0 means what? Y-axis. And y equal to 0 means x axis. So this is x axis means y equal to 0. This is y axis means x is equal to 0. ठीक है, फिर क्या ड्रॉ करना है? x प्लस वाई इक्वल टू ए। कैसे ड्रॉ करोगे ये? दिस इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू विच पॉइंट्स? व्हेन y 0 x इक्वल टू ए एंड y इक्वल टू ए। तो इन दोनों पॉइंट से वो ए पॉजिटिव ट्रीट कर रहा हूं मैं, ठीक है। सो दिस पॉइंट इज से a कॉमा 0 एंड दिस पॉइंट यू कैन कंसिडर एज से 0 कॉमा a, ओके, एंड दिस इज योर लाइन, ठीक है। सो व्हाट इज दिस? दिस इज x प्लस वाई इज इक्वल टू ए। तो सारे लाइंस मैंने ड्रॉ किए, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x प्लस वाई इक्वल टू ए। नाउ यहाँ पे अभी ये वर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द बाउंडेड रीजन बाय दिस थ्री लाइंस? व्हाट इज द बाउंडेड रीजन बाय दिस थ्री लाइंस? यस, मतलब ट्रायंगल, मदर ट्रायंगल, हाँ ट्रायंगल, करेक्ट। तो इसलिए वो वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ दिस इज योर रीजन। तो आपने परफेक्ट आपका आर रीजन कैलकुलेट किया है, ठीक है। सो दिस इज योर रीजन आर। उसके आगे आपको मैंने क्या बोला था, आपका जो भी गिवन क्वेश्चन है, ठीक है, लेट मी जस्ट फर्स्ट कंसिडर ओनली फॉर रैंडम फंक्शन। तो बस इसमें लिमिट ही कैलकुलेट करने, आगे सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। तो आपको पहले आपके ऑर्डर डिसाइड करनी है कि आपको इसको कौन से ऑर्डर से सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपको मैंने पहले ही बोला है, यहाँ पे इस केस में मैं दोनों ऑर्डर से आपको दे रहा हूँ, बट किसी एक ऑर्डर से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है, ओके। सो लेट अस फर्स्ट सॉल्व दिस फंक्शन और लेट अस फर्स्ट इंटीग्रेट दिस विद रिस्पेक्ट टू y, है ना। हियर वी हैव टू कैलकुलेट y एंड देन वी विल इंटीग्रेट दिस विद रिस्पेक्ट टू x। मैं इसलिए ऐसे लिख के रखता हूँ क्योंकि आपको जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो फर्स्ट वी हैव टू इंटीग्रेट दिस विद रिस्पेक्ट टू y एंड देन विद रिस्पेक्ट टू x। सो फॉर द ऑर्डर डिवाइड dx आपको क्या करना पड़ता है गिवन रीजन में? व्हाट वी हैव टू कंसीडर इन अ गिवन रीजन? वर्टिकल स्ट्रिप, ठीक है। सो कंसीडर अ वर्टिकल स्ट्रिप इन दिस रीजन, और इसके सारे डिटेल्स में यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ या इसके सामने ड्रॉ करता हूँ, चलो यहाँ पे कर लेते हैं। सो फॉर द ऑर्डर डिवाइड dx आई हैव टू कंसीडर अ वर्टिकल स्ट्रिप इन द गिवन रीजन। हाँ, अब इसके सारे डिटेल्स कैलकुलेट करो। सो फॉर अ वर्टिकल स्ट्रिप कैलकुलेट लिमिट्स ऑफ y एट द एंड। तो बोलो क्या लिमिट्स है y के? यहाँ पे क्या वैल्यू है इस पॉइंट पे? 0 to a माइनस। हाँ, सो y इज 0 हियर, व्हाट इज एट टॉप, मतलब ये जो लाइन है इस लाइन पे, वेरी गुड, a माइनस x, करेक्ट। नाउ वी हैव टू मूव दिस स्ट्रिप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड हियर वी हैव टू कैलकुलेट x. So when we are left x is equal to 0 and at right, right मतलब कहाँ पे एंड होगा? इस पॉइंट पे, करेक्ट ना? Yes sir. Are you getting my point or not? आपको जब आप राइट एंड पे आते हो, राइट एंड क्या आपका एक सिंगल पॉइंट है,
ये आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए, यहाँ पे लाइन नहीं आएगी। व्हेन यू कंसिडर स्ट्रिप, योर टॉप एंड इज ऑन अ लाइन, या योर टॉप एंड इज एक्चुअली अ लाइन, स्मॉल पार्ट ऑफ योर लाइन। बट जब आप मूव करते हो ना स्ट्रिप, तो यहाँ पे राइट एंड आपका क्या है, जस्ट अ सिंगल पॉइंट। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, राइट एंड यहाँ पे क्या है, एक सिंगल पॉइंट है। ओके, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एट दिस सिंगल पॉइंट? ठीक है, तो ये याद रखो, आउटर लिमिट मतलब ये मूव करने के जो लिमिट्स है ना, मूव करने के लेफ्ट टू राइट, बॉटम टू टॉप, ये लिमिट्स आपके हमेशा कांस्टेंट ही आने वाले। यहाँ पे गलती से भी वेरिएबल आ गया ना, वो रॉन्ग है, मतलब आपने कहीं पे रॉन्ग ही किया है। ये कभी आपके वेरिएबल नहीं आने वाले, ये आउटर मूविंग के जो लिमिट्स है, बॉटम टू टॉप एंड लेफ्ट टू राइट। सो नाउ जस्ट राइट दिस लिमिट्स एज इट इज, दैट कंप्लीट्स योर प्रॉब्लम। सो y इक्वल टू 0 टू a माइनस एक्स एंड x वैरी फ्रॉम 0 टू a। ये आपको 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन या 3 मार्क्स के लिए आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। इसके अगर आपको फंक्शन गिवन है तो आप उसको लेके सॉल्व कर सकते हो। ओके, दैट इज नेक्स्ट पार्ट। तो अब ये मैं नहीं करने वाला क्योंकि आप फंक्शन को लेके सॉल्व करना इतना डिफिकल्ट नहीं है। नाउ लेट मी सॉल्व दिस सेम एग्जांपल विद द सेकंड अप्रोच। तो ये हो गया आपका फर्स्ट। आपको दोनों में से एक से सॉल्व करना है, दोनों अप्रोच यूज करने की जरूरत नहीं है। नाउ लेट अस सॉल्व दिस एग्जांपल बाय सेकंड मेथड। ठीक है, सो नाउ I will integrate this same function first with respect to what, dx, and here I calculate limits of x, then I will integrate with respect to y, and here I calculate limits of y. So for this case I have to consider what? I have to consider which strip in a given region? Horizontal strip in a given region. तो हमेशा मिडल पे कंसिडर करो तो आपको प्रॉपर उसके लिमिट्स दिखाई देंगे। ठीक है, एंड फॉर दिस हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लिमिट्स में यहाँ पे कंसिडर करता हूँ। सो फॉर दिस हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप वी हैव टू कैलकुलेट x एट द एंड एंड देन वी हैव टू मूव दिस स्ट्रिप फ्रॉम, ठीक है बाद में करते हैं। चलो x के वैल्यूज बोलो पहले। यहाँ पे 0 क्या है, 0, गुड। और ये जो लाइन है, इस लाइन पे x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है, a minus y. Then we have to move this strip from bottom to top and where we have to calculate y. Sorry. हाँ, सो बोलो बॉटम पे y की वैल्यू क्या है, इस बॉटम मतलब ये लाइन है, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, 0 ना। टॉप मतलब क्या आने वाला है, टॉप पे क्या है, एक सिंगल पॉइंट है, हाँ, एंड उस पॉइंट पे y की वैल्यू क्या है, a. सो नाउ दिस बिकम y वैरी x वैरी फ्रॉम 0 टू, नहीं दिखाई दे रहा, सॉरी, 0 टू a माइनस y एंड देन सॉरी, हाँ करेक्ट है, और 0 टू a हो गया। तो आप इस मेथड से सॉल्व करो, इस मेथड से सॉल्व करो, दोनों मेथड से आपको सेम ही आंसर मिलने वाला है। तो ये और में आता है, दोनों में से किसी एक अप्रोच से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। क्लियर है? ये क्वेश्चन आप इस पे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको अभी एग्जाम में आने वाले हैं, जस्ट टू इवैल्यूएट द लिमिट्स। कुछ डाउट्स है तो बोलो। हेलो सर। हाँ, वो पहले गलत, वो डिवाइड क्या क्या सर वो पहले इंटीग्रेशन में डिवाइड उल्टा लिखा। फर्स्ट इक्वेशन में सर नीचे। हाँ सर जो फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा था उसमें इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन fxy dx dy लिखा था, फिर इज इक्वल टू इक्वेशन लिखा था, वो ऊपर वाला फर्स्ट वाले में बोल रहा है dy dx होना चाहिए, लेफ्ट वाला, लेफ्ट साइड। ये बोल रहे हो क्या? हाँ हाँ करेक्ट। हाँ, आपको मैंने इसका कल रीजन एक्सप्लेन किया था। कैन एनीवन टेल मी दैट रीजन? सर कहीं पे भी लिख सकते हैं, आपने बोला था वो ये बस एक नोटेशन होता है। तो हमेशा इस प्रॉब्लम में ये जो गिवन होता है, दिस इज नॉट योर ऑर्डर। अगर यहाँ पे मैं आपको ऑर्डर दे देता तो ये क्यों कर रहे हो आप इतना कुछ? व्हाई वी नीड दिस पार्ट? ठीक है, ये बस एक नोटेशन है इंटीग्रल का। दिस इज जस्ट द नोटेशन। f of x y dx dy, 2 वेरिएबल का इंटीग्रल है, इतना उनको बोलना है।
ठीक है, दिस इज नॉट योर ऑर्डर इन एवरी एग्जाम्पल, सारे बुक के एग्जाम्पल में यहाँ पे हमेशा dx dy है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे इंटीग्रल के ऑर्डर dx dy, ऑर्डर आप खुद कैलकुलेट करने वाले। जैसे इस क्वेश्चन की मैंने ऑर्डर क्या कंसिडर किया, डिवाइड dx कंसिडर की है। अगर मुझे डिवाइड dx ऑर्डर से सॉल्व करना है तो सेम क्वेश्चन को मैं dx dy ऑर्डर से भी सॉल्व कर सकता हूँ। सो दिस इज जस्ट द रिप्रेजेंटेशन, इसका कोई मीनिंग नहीं है, इस dx dy का कोई मीनिंग नहीं है। क्लियर है अभी? Yes, sir. हमेशा मैं वहाँ पे dx dy लिखने वाला हूँ हमेशा, ठीक है। एक्चुअल ऑर्डर क्या है वो आपको बाद में कैलकुलेट करना है, ठीक है। वो आपको ये सारी चीजें करके वर्कआउट करके देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द एक्चुअल ऑर्डर ऑफ दैट गिवन इंटीग्रल। ओके, आई होप नाउ दिस क्लियर, दिस पार्ट इज क्लियर टू ऑल। या और कुछ इसमें एक्सप्लेन करना तो बोलो, एक और एग्जांपल लेने वाला हूँ। अभी क्लियर है सबको? यस सर। ओके, नाउ विल टेक वन मोर एग्जांपल। हाँ, अभी इसमें प्रॉपर उन्होंने दिया। चलो, सॉल्यूशन। हाँ, सो लेट अस फर्स्ट ड्रॉ दिस गिवन रीजन। क्या रीजन गिवन है? सो रीजन आर क्या है आपके पास? हाँ, इट इज बाउंडेड बाय, सो वर्ड इंपॉर्टेंट है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू x। सो लेट अस फर्स्ट ड्रॉ दिस रीजन। बोलो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या है? अरे हाँ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या है? तो थोड़ा जाने दो, चलो बोलो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या है? मैं इसको थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करता हूँ। व्हाट इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर? पैराबोला। पैराबोला। पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट व्हाट? y axis, y एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। इसको कैसे याद रखना, अभी आपको मैंने पहले बोला था, मैं आपको देता हूँ लास्ट में कौन कौन से पॉसिबल ग्राफ्स आपको इसमें याद रखने। बट इतना याद रखो, ये सारे पैराबोलाज आपको पता होने चाहिए, सारे इलिप्स के डायग्राम आपको पता, मतलब यू मस्ट नो द डायग्राम ऑफ ऑल द इलिप्स, ऑल द पैराबोलाज, देन सर्कल्स, और फिर क्या चाहिए, आई थिंक इतना ही है ना, इतना ही है। इतने सारे स्ट्रेट लाइन का तो आपको पता ही है। ओके, ये सारे कर्व्स आपको इमीडिएटली प्लॉट करने हैं, तो इसमें थोड़ा बहुत ग्राफिकल नॉलेज आपको प्रॉपर चाहिए। सो हमेशा याद रखो, पैराबोला में क्या होता है, जिसकी पावर इवन है तो उसके अपोजिट एक्सिस पे वो सिमेट्रिक रहता है। सिंस द पावर ऑफ एक्स इज इवन, सो दिस ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है। इफ यू डोंट नो दिस रिजल्ट, ये आप अपने ट्रिक से याद रखो। ये एक्चुअली कर्व ट्रेसिंग का आपको एक टॉपिक था, उसके बाद ये यूनिट था, सॉरी ये एरो नहीं करना है। So this graph is actually, let me give here, this graph is y equal to x square. Next, y equal to x, क्या है वो? हाँ? लाइन। Line. straight line. Straight line. What is the slope of this line? क्या slope One. है? 1. This is y equal to x line. ठीक है? And what is the bounded region by these two curve? यही होगा, करेक्ट? First quadrant. ये आपका बाउंडेड रीजन है। ओके, अभी क्या करते हैं? हाँ, कंसिडर, क्योंकि डिवाइड एक्स ऑर्डर से सॉल्व करने वाला, सो कंसिडर वर्टिकल स्ट्रिप, एक ही ऑर्डर से करने वाला इक्वेशन इन गिवन रीजन, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्टिकल स्ट्रिप कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। वो सेम स्ट्रिप में यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे लिमिट्स लिखना पॉसिबल नहीं है। एंड फॉर दिस वर्टिकल स्ट्रिप आई नीड द वैल्यूज ऑफ y एट द एंड। बोलो, अभी ये जो एंड है ये इस कर्व के ऊपर आ रहा है, तो व्हाट इज y ऑन दिस कर्व? हाँ, अंडर रूट एक्स। अरे व्हाट इज y ऑन दिस कर्व? एक्स स्क्वायर, y की वैल्यू गिवन है ना एक्स स्क्वायर, करेक्ट या नहीं? यस सर। हाँ, एंड व्हाट इज y? Yes, sir. y on this line? What is y on this? X. X. ये क्लियर है सबको? हाँ, एंड नाउ मूव दिस स्ट्रिप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वेयर वी नीड टू कैलकुलेट x। लेफ्ट मतलब ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे x की वैल्यू क्या है? ओ पॉइंट लेते हैं। सो हाँ
तो आता इथं ऑर्डर dx dy मग आपण हॉरिझॉन्टल स्ट्रिप कन्सिडर करायला पाहिजे ना. डीएक्स डीवाय नाही घेतली मी ऑर्डर, वर्टिकल स्ट्रिप आहे ना. स्ट्रिप ज्या ॲक्सिसला पॅरल असते ना तीच ऑर्डर असते. ही स्ट्रिप कोणत्या ॲक्सिसला पॅरल आहे? y axis वाय ला ॲक्सिसला. म्हणून ऑर्डर काय असणार आहे याची? डीवाय डीएक्स. dy dx. When I consider a strip which is parallel to x-axis, in that case your order is dx dy. Okay, it become now it is easy to remember. मैं हमेशा सारे क्वेश्चन में मेरा पहला अटेम्प्ट होगा वर्टिकल स्ट्रिप से ही. अगर वर्टिकल स्ट्रिप में मुझे कोई प्रॉब्लम आती है तो ही मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से करने वाला हूँ. ऐसे डायरेक्टली दोनों स्ट्रिप से ट्राई मत करो, किसी एक से ही हमें सॉल्व करना है. ओके, नाउ टेल मी एक्स एट पॉइंट ओ. 0. हाँ, एंड एक्स एट पॉइंट ए. तो इसलिए पहले मुझे ये पॉइंट कैलकुलेट करना होगा. बोलो कैसे कैलकुलेट करोगे ये पॉइंट? सर सॉल्व करायचं दोघांना हाँ, इक्वेशनला. पॉइंट ए इज व्हाट? इंटरसेक्शन ऑफ. y is equal to x and y is equal to x. वेरी गुड. y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू x. तो आपको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होगा. कैसे? y इक्वल टू एक्स यहाँ पे डालो. सो दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. दैट इम्प्लाइज x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 0. दैट इम्प्लाइज 0. x into x minus 1 is equal to 0. That implies x is equal to 0 comma 1. Sorry, correct है वो. 0 हाँ, that implies 0 comma 1. एंड अभी आपको दोनों केस में y भी कैलकुलेट करना है. सो दैट इम्प्लाइज व्हेन x इज 0, फर्स्ट वैल्यू 0 है. व्हेन x इज 0 y की वैल्यू क्या है? 0. व्हेन x इज 1 y की वैल्यू क्या है? 1. ठीक है. तो 0 0 पॉइंट, मतलब यहाँ से क्या मिलता है? इंटरसेक्शन के सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं आपको. तो दो ही इंटरसेक्शन पॉइंट थे. एक पॉइंट आपका क्या है? 0 0. तो अगर ये 0 0 में मुझे पता ही है ये 0 0 है, तो ये ऑब्वियसली मेरा 1 1 ही होगा. ठीक है, क्लियर है अभी कैसे कैलकुलेट करना है इंटरसेक्शन पॉइंट? दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, Yes. विल गेट ऑल द इंटरसेक्शन पॉइंट्स. उसमें से देखो कि अपना पॉइंट कौन सा है. सो हियर x इज 1. ओके, एंड नाउ राइट दिस गिवन इंटीग्रल. तो अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाने वाला. ये इंटीग्रल मुझे लिखना है एक्स वाई एक्स प्लस वाई. ठीक है. सो देयरफॉर डबल इंटीग्रल ओवर आर एक्स वाई एक्स प्लस वाई, ये आपको गिवन था. दिस इज इक्वल टू, मैंने क्या किया था? सिंस हियर आई कंसिडर अ वर्टिकल स्ट्रिप, सो आई विल इंटीग्रेट दिस फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू वाई, एंड हियर आई कंसिडर द लिमिट्स ऑफ वाई. Then I will integrate this with respect to x, and then I will consider the limits of x. So again, if I check here, y vary from x square to x, so y vary from x square to x, and your x vary from 0 to 1. Your x vary from 0 to 1. ये आपको 2 मार्क्स के लिए यहाँ तक आने वाला है. अभी क्लियर है? Is this clear now? हाँ, तो पहले इसको सॉल्व ही कर लेते पूरा, क्योंकि एक एग्जांपल मैं आपको इन डिटेल में सॉल्व कर लेता हूँ. बाद में लिमिट्स तक ही कैलकुलेट करने वाला, क्योंकि उसके आगे वैसे भी एमसीक्यूज में इतना नहीं आने वाला. सो एक्स वैरी फ्रॉम 0 to 1. लेट अस फर्स्ट कंप्लीट दिस. हाँ, तो मुझे वाई से इंटीग्रेट करना है. बोलो क्या क्या लिखना है? टेल मी फास्ट. वाई से इंटीग्रेट करके एक्स स्क्वायर. हाँ बोलो, इंटीग्रेट दिस विद रिस्पेक्ट टू वाई. सो व्हेन वी इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू वाई योर एक्स इज कांस्टेंट. बोलो, मल्टीप्लाई करो और y square by y square by 2 y square by 2 plus plus x y cube by 3. very good x y cube by 3, and your limits are from x square to x dx. So is equal to integration from 0 to 1. Put the upper limit. x raised to 4 by 2. हाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा अपर लिमिट के लिए? वेरी गुड, x raised to 4 by 2. नेक्स्ट x raised to 4 by 3. x raised to 4 by 3. This is all about upper limit. Now put lower limit. x raised to 6 by 2. Correct. Square 4 6. Good. Then x raised to 7 by 3. 7 by 3 ना. Okay, and ये dx. Just do the simplification. So x vary from 0 to 1. ये क्या होगा? 3 plus 2 5 ना. Correct me if I wrong. 5. 5x raised to 4 upon 6 minus x raised to 6 by 2 plus, put this on calculator immediately and tell me final answer. ये मैनुअली नहीं करना है.
डू इट ऑन कैलकुलेटर एंड टेल मी फाइनल आंसर। ये मैनुअली करने में टाइम जाएगा, सो डू इट ऑन कैलकुलेटर डायरेक्टली और जल्दी से मुझे आंसर बोलो। सर वो माइनस आएगा ना x की पावर 7/3। क्या है x की पावर 7/3 माइनस आएगा नीचे। अरे हाँ करेक्ट, प्लीज डू दैट करेक्शन है, सॉरी। सो ये माइनस ब्रैकेट का साइन था ना, ओके। डू इट ऑन कैलकुलेटर क्विकली, फास्ट करो फास्ट। थ्री बाय 56। वेरी गुड, 3/56। अभी आप मुझे ये बोलो, ये जो आपने नंबर यहाँ पे बोला 3/56, ये क्या है? एरिया है, वॉल्यूम है, क्या है ये? वॉल्यूम। वॉल्यूम अंडर दिस कर्व बाउंडेड बाय रीजन R. So this is the physical interpretation of what you have calculated here. 3/56 is the volume. अब देखो पॉजिटिव आ रहा है बिकॉज ऑफ अवर साइन कन्वेंशन जो हमने केयर की थी, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, बिकॉज ऑफ दैट यू विल गेट हियर पॉजिटिव वैल्यू एंड दैट गिव्स यू द वॉल्यूम बाउंडेड बाय दिस दिस सरफेस इन 3 डायमेंशन। ओके, ये 3 डायमेंशन में जाने वाला है एंड बाउंडेड बाय रीजन R. ओके, नाउ ये मैंने किया था डिवाइड dx से सॉल्व। ओके, अभी आपको मैं दिखाता हूँ dx डिवाइड से भी अगर आपको करना है तो कैसे भी ये होगा, एंड देन विल स्टॉप। So now I have to solve the same example by order dx dy. So let me take a horizontal strip here, ठीक है, एंड सेम स्ट्रिप में यहाँ पे भी कंसिडर करता हूँ। तो ये मैं एक स्क्वायर ब्रैकेट में डाल रहा हूँ, इसका मैं पूरा सोल्यूशन नहीं देने वाला, बस लिमिट्स देने वाला हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन सॉल्व फर्दर। सो जस्ट आई विल गिव यू द लिमिट्स। बोलो मुझे x चाहिए एंड पे, then I have to move the strip from bottom to top, and where I need y. And here I need y. बस लिमिट्स कैलकुलेट करते हैं, then we stop. बोलो, so when we at left end, इस पॉइंट पे x की वैल्यू क्या है? y. गुड। हाँ, इस कर्व पे रूट y, हाँ रूट y, यहाँ पे अभी 2 वैल्यूज है x के लिए। व्हाट आर 2 वैल्यूज फॉर x? प्लस माइनस रूट y, प्लस और माइनस रूट y। अब ये कैसे डिसाइड करोगे कि मुझे यहाँ पे प्लस रूट y लेना है या माइनस रूट y लेना है? कैसे डिसाइड करोगे? क्वाड्रेंट। वेरी गुड, ठीक है। ये जो पॉइंट मेरा आ रहा है, ये इस पॉइंट के लिए आप नीचे अगर आते हो तो मेरा यहाँ पे x क्या है? पॉजिटिव है ना? yes sir, So since my x is positive, here I have to consider root y. Are you getting this? अभी ये सेम पॉइंट अगर यहाँ पे आ जाता ना तो मुझे माइनस रूट वाई कंसिडर करना होगा। अगर मैं ये लाइन अगर मैं आपको चेंज करके देता हूँ ना, y इक्वल टू एक्स की जगह पे y इक्वल टू माइनस एक्स करता हूँ ना, तब आपको क्या आने वाला है यहाँ पे? माइनस रूट वाई। देखो इतना ट्रिवल चेंज भी करता हूँ तो ये टोटल चेंज हो जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इफ आई जस्ट चेंज दिस y इक्वल टू एक्स लाइन बाय y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन, ये लाइन अगर मैं आपको दे देता हूँ ना, तब यहाँ पे माइनस साइन आ जाता है, क्योंकि ये जो पार्ट है ये x इक्वल टू माइनस रूट वाई का पार्ट है। इज दिस क्लियर? सबको समझ में आ रहा है कि प्लस रूट वाई ही आपको क्यों कंसिडर करना है? क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ओके गुड, एंड टेल मी वाई। कम टू एट बॉटम, बॉटम पे कौन सा पॉइंट मिलेगा? बॉटम पे क्या मिलेगा? 0 पॉइंट है। जब आप एंड पे आते हो बॉटम पे 0 पॉइंट है, तो वहां पे वाई की वैल्यू 0 है। एंड व्हाट इज एट टॉप? टॉप पे भी एक सिंगल पॉइंट है। एंड व्हाट इज एक्स? 1, सॉरी व्हाट इज वाई देयर? 1। आप इससे भी करो, यू विल गेट द सेम आंसर, 3/56 ही मिलेगा। If you want to verify, you can verify. ठीक है, you will get the same answer in this case also. Okay. Okay. और एक एग्जांपल था, मैं आपको ये पीपीटी शेयर करता हूँ, you can try this. ठीक है,
मैं आपको बस हिंट देता हूँ, देन विल स्टॉप। इस एग्जांपल में भी क्या दिया उन्होंने, रीजन आर इज द वर्टाइसेस ऑफ सॉरी इज अ ट्रायंगल उस वर्टाइसेस आर देयर, तो वर्टाइसेस आर दिस, तो आपको पहले ट्रायंगल ड्रॉ करना होगा। आई विल जस्ट गिव यू हिंट एंड देन विल स्टॉप। क्या पॉइंट है 0 1, मतलब वाई एक्सिस पे आएगा ना ये, चलो ये लेते हैं पॉइंट ए 0 1, फिर क्या है 1 1, ये पॉइंट होगा, फिर क्या है 1 2, एक्सिस 1 2, ये पॉइंट होगा। करेक्ट है ना, डायग्राम करेक्ट है कि नहीं? हाँ? यस हाँ, तो इसमें आप फिर वर्टिकल स्ट्रिप लोगे। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, सो एवरीवन हैज टू ट्राई दिस। आप जब ट्राई करोगे तभी इसमें इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे y की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे मुझे y की वैल्यू चाहिए। y की वैल्यू यहाँ पे पॉइंट नहीं है, इस पूरे लाइन मुझे इस लाइन का इक्वेशन चाहिए, ठीक है। सो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी एंड व्हाट इज इक्वेशन ऑफ लाइन ए सी, क्योंकि इक्वेशन चाहिए ना, तभी ये दोनों वैल्यूज मुझे मिल जाएंगे। बोलो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ ए बी, ये तो ट्रिवियल है, 1. y equal to 1 Y equal equal to to 1, very good. And what is equation of this? Equation of a line which passing through these 2 points 0 1 and 1 2, कैसे कैलकुलेट y is करेंगे? equal to x plus 1. इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस 2 पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हो? व्हाट इज द फॉर्मूला? व्हाट इज द फॉर्मूला? अरे X minus x minus x1 upon x1 minus x2 is equal to y minus y1 upon y1 minus y2 ऐसा है। ये आपका फॉर्मूला है, ओके। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। नाउ दिस बिकम योर x1 y1 and this become your x2 y2. So this gives me x minus x1 which is 0 upon x2 minus x1 which is 1, y minus y1 which is 1 upon y2 minus y1 which is 1. So I think x is equal to y minus 1. आप चेक करो। So y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या आएगी? हाँ x plus 1, गुड, ठीक है। एंड यहाँ पे लेफ्ट साइड में x की वैल्यू 0 और यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी 1, हो गया लिमिट्स। यू कैन कंप्लीट दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो दिस इज जस्ट द हिंट, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन एंड कम विद द सॉल्यूशन एटलीस्ट इन नेक्स्ट लेक्चर। ये मैं आपको टोटल नहीं सॉल्व करके देने वाला, सो यू हैव टू ट्राई दिस, ओके। हियर विल स्टॉप टुडे।